Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Myself Sohail Dongre. We'll start with the HSC Commerce DK lecture, the chapter number 1, Introduction to Partnership and Final Account. Before starting, as we have already done the final account relating to sole trader. Now sole trader has the limitation of capital, limitation of manpower and management. So to expand his business, he may need a capital, manpower. For the same, he have to take a partner for the expansion of his business. So let's learn about the Partnership Act, definition and features. According to Indian Partnership Act 1932, Section 4, which define it is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or anyone of them. मतलब ये है कि जो भी शख्स को दो पर्सन एक साथ आए काम करने के लिए, तो वो उनका एक मुनाफा तय होगा और उस हिसाब से बिजनेस या कारोबार किया जाएगा, चाहे वो दोनों में से एक करे या दोनों मिलकर करे. It has a features which are as follows. Number 1, agreement. The agreement should be done in written or oral by the partners. एग्रीमेंट करना लाजमी है, ज़रूरी है. रिटन या तो ओरली, मुआयदा जिसे कहते हैं, बेहतर है कि वो रिटन में हो. सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स. नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम जो रहेंगे वो 2 है, मैक्सिमम कंपनी के एतबार से 50 है. बिजनेस नंबर 3 जो है लॉफुल बिजनेस. बिजनेस जो है वो लॉफुल होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेट. जैसे एग्जांपल अगर आप गुजरात स्टेट का ले लो तो वहाँ पर शराब जो है वो बैन है, मना है, तो आप वहाँ पे शराब का बिजनेस नहीं कर सकते. उसी तरह बिहार में भी आप शराब का कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन महाराष्ट्र में आप कर सकते हो, वेस्ट बंगाल में आप कर सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट वो बिजनेस लॉफुल है क्या, तो ही आप उसको कर सकते हो. इन शॉर्ट लीगल बिजनेस होना चाहिए. नंबर 4, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस. पार्टनर्स रेशो के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस को बेयर करेंगे, शेयर करेंगे. नंबर 5, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. जितना अगर उनका लाइबिलिटी अगर वो बिजनेस से पे नहीं कर पा रहे तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से जितना भी है वो 1-1 रुपया वसूला जाएगा. तो इसलिए लाइबिलिटी उनकी अनलिमिटेड है. रजिस्ट्रेशन नंबर 5, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है महाराष्ट्र स्टेट में, बाकी जगह ऑप्शनल है. नंबर 6, जॉइंट ऑनरशिप. जॉइंट ऑनरशिप और मैनेजमेंट. ईच पार्टनर इज जॉइंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज. ऑल पार्टनर हैव इक्वल राइट्स टू मैनेज द फर्म. तो हर पार्टनर जो है वो बिजनेस के प्रॉपर्टी का ऑनर है और मैनेज करने का उसको अधिकार है. नंबर 8, डिसॉल्यूशन. A partnership firm can be dissolved through agreement between the partner. If partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice. तो अगर पार्टनरशिप को ख़त्म करना है, बंद करना है, पार्टनरशिप नहीं अगर कंटिन्यू करना है, तो किसी एक पार्टनर को नोटिस देनी होगी अपने दूसरे पार्टनर को 14 दिन पहले.
is a step for preparing final account. Number 1, we have to prepare journal and subsidiary books. With the help of journal, we will convert that into ledger, and with the help of ledger, we will convert into trial balance. And with the help of trial balance, we will convert it to final account. In final account, there are two types of account. One is trading account, another is profit and loss account. And one statement we have to prepare known as a balance sheet. As per Income Tax Act 1961, financial year start on 1st April, ends on 31st March every year. We should prepare final account? Necessity of preparation of final account. Number 1, to find out gross profit or gross loss, find out net profit, net loss, know the financial position of business, find out amount of debtors, creditor, to calculate various taxes of firm. Trading account is a part of final account which is prepared on the basis of direct expenses and direct income of business to ascertain the result of the business. In trading account, there are two sides. One is debit side, second is credit side. In debit side, direct expense is written, and in credit side, direct income is written. Direct expense, example, purchase, wages, carriage. Direct income is only one, known as sales. Direct expense have direct connection with the production. With the help of trading account, we will get gross result of a business. This is the specimen form of trading account. In debit side, we can see number 1 is opening stock. Now, what is opening stock? It is a stock which are remain in a previous year. वो स्टॉक जो पिछले साल बच गया था वो अब इस साल को कंटिन्यू किया जाएगा. नंबर 2, डेबिट साइड पे हम देख रहे हैं परचेज, जो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है जो रिलेटेड है बिजनेस से, प्रोडक्शन से डायरेक्टली. तो जो भी रॉ मटेरियल परचेज करके लाया है प्रोडक्शन के लिए, वो परचेज यहाँ पर हम नोट करेंगे. फिर लिखा है लेस रिटर्न आउटवर्ड. तो ये रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट ए परचेज रिटर्न. जो भी हमने परचेज करके लाया गुड्स, उसमें जो डिफेक्ट है हम रिटर्न कर देंगे, उसको कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड. वो लेस होगा परचेज से. उसके बाद 2, कैरेज इनवर्ड या कैरेज करके दिया है. ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है. जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज करके लाए थे वो कैरी करके लाए थे ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो वो कैरेज का चार्ज हमने जो पे किया वो कैरेज इनवर्ड या कैरेज में आएगा. उसके बाद एग्जांपल दिया है कार्ट्रेज का. कार्ट्रेज जो है वो गुड्स को जो साफ सफाई करने का चार्ज पे करते हैं वो कार्ट्रेज होता है. वेजेस जो परचेज करके रॉ मटेरियल लाया गया है, अब उसको कन्वर्ट करना है फिनिश गुड में, तो लेबर यूज होते हैं, तो उनको डेली बेसिस पे जो पेमेंट दिया जाता है वो वेजेस है. वेजेस एंड सैलरी भी लेबर को दिया जाता है, और सैलरी जो है वर्कमैन मैनेजर है उनको दिया जाता है. फ्रेट जो बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स को लाया जाता है तो फ्रेट या फ्रेट इनवर्ड पे करते हैं. फैक्ट्री एक्सपेंस, पावर, फ्यूल, रॉयल्टी, ऑक्ट्रॉय, ये सब जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड एंट्री है.
और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रोसेस के टाइम पे होता है। कस्टम ड्यूटी हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। इसके जो मतलब है, जब हम सम स्टार्ट करेंगे तब उसको एक एक करके समझते जाएंगे। फिर डायरेक्ट इनकम जो क्रेडिट साइड में होता है, उसमें सबसे पहला जैसे बताया गया था सेल्स है या डायरेक्ट इनकम, ये एक ही होता है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट को सेल किया है और वो सामने से रिटर्न आया तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं या रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। तो ये सेल्स में से माइनस होता है। गुड्स जो डिस्ट्रॉयड हुआ है बाय फायर और थिफ, तो ये लॉस है, तो ये क्रेडिट साइड में एंटर होगा। ड्रॉइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, तो अगर पार्टनर्स में से किसी ने गुड्स विड्रॉ किया है तो वो जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जो ऐड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स को, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर इसके बाद जो स्टॉक बैलेंस रह जाता है विद एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग स्टॉक करके लिखा जाएगा। फिर अगर इन द डिफरेंस अपीयर ऑन क्रेडिट साइड, इट इज ए ग्रॉस लॉस, और डिफरेंट अपीयर्स ऑन डेबिट साइड, इट इज ए ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये भी लेजर फॉर्मेट में होगा। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दिया हुआ है। तो डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर द एक्सपेंस विच आर incurred after the finished goods preparation for selling the goods in a market. Whichever expense incurred is a indirect expense, and excluding sell other income raised in a firm is a indirect income. Example of indirect expense: number 1, salary to the staff or salesman, salary, then traveling expense, then insurance, advertisement, telephone charge, electricity charge, postage and telegram, etc. These are the indirect expense which are entered in a profit and loss in debit side. Indirect expense. ओके तो जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। कि फिर से रिपीट करते हैं कि जो भी एक्सपेंस डायरेक्ट कनेक्ट है प्रोडक्शन के वक्त, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज, वेजेस, कैरेज एक्सेट्रा। और जो भी प्रोडक्शन होने के बाद एक्सपेंस इनकर्ड होता है सेल करने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे सैलरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पोस्टेज एक्सेट्रा। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम आएगा। कमीशन, डिस्काउंट, रिसीव,
कमीशन हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, या RDD एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक ही डायरेक्ट इनकम होता है, वो है सेल्स। एक ही डायरेक्ट इनकम होता है, वही सेल्स। डायरेक्ट इनकम जो प्रोडक्शन के थ्रू होने वाला है वो डायरेक्ट इनकम कहलाया जाएगा, वो है सेल्स। और इसके अलावा सेल्स के अलावा जितने भी इनकम हमको दिखाई देंगे वो इनडायरेक्ट इनकम है। जैसे कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, रेंट मिल गया हमको, या वो डाउटफुल अमाउंट जो हमको डाउटफुल था मिलता कि नहीं और मिल गया, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट इनकम जितने भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगे। अभी हम लर्न करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में दो साइड है, एक लायबिलिटी है और एक एसेट है, और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसलिए ज़रा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू लेजर। तो लायबिलिटी जो है उसमें कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल आ जाएंगे। सपोज X है, Y है। फिर लोन अगर है तो लोन अकाउंट आएगा, बिल्स पेबल आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे सैलरी हो सकता है आउटस्टैंडिंग, और वेजेस। ये लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स। फिर एसेट साइड है, बिजनेस का जो एसेट है, प्रॉपर्टी है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ये जो एसेट है ये फिक्स एसेट बोला जाता है, जो लॉन्ग टर्म चलता है। और डेटर्स करंट एसेट होता है, कैश हो गया, बैंक में पैसा है तो बैंक हो गया, बिल, रिसीवेबल एक्सेट्रा। तो ये बैलेंस शीट की एक स्पेसिमेन आपको बताया गया है। लायबिलिटी, जो भी बिजनेस की लायबिलिटी है जो रिकवर करनी है, बिजनेस को देना है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे पार्टनर्स का कैपिटल भी, जो पार्टनर्स अगर चाहे विड्रॉ करना इन द नेम ऑफ ड्राइंग तो करना होता है, लायबिलिटी में शो है। लोन अगर लिया है तो लोन पे करना है, बिल का भुगतान करना है, बिल पेएबल। ओवरड्राफ्ट अमाउंट है, अकाउंट में नेगेटिव अमाउंट है तो वो पे करना है। क्रेडिट कुछ लिया है क्रेडिटर से तो उसका पैसा देना है। और सैलरी किसी पेंडिंग है या वेजेस पेंडिंग है तो वो पे करना है। तो जो भी हमें पे करना बाकी है वो लायबिलिटी साइड में आपको दिखाई देगा। और जो भी बिजनेस का एसेट है, प्रॉपर्टी है, जो फिक्स एसेट है, जैसे बिल्डिंग बताया एग्जांपल के लिए, मशीनरी बताया गया, फर्नीचर है, ये फिक्स एसेट है। और डेटर्स, कैश, बैंक, ये करंट एसेट है, बिल रिसीवेबल करंट एसेट है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम सम स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।